Students, I am going to describe you the next topic of Feudalism, decentralization in India. Okay, first we will discuss about the meaning of decentralization and then we will move ahead. So, what does decentralization mean? Decentralization means when the power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. Okay, so जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर्स लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दी जाती हैं तो इस प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन या हिंदी में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहते हैं. इन दिस प्रोसेस power is taken from central and state government and given to the local governments. What is the need of decentralization? आप क्वेश्चन लिखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का. What is meant by decentralization? What is meant by decentralization? और इसी के आगे लिखेंगे What is the need of decentralization in India? So, what is the need? Okay, the country like India have so much diversity, so much cultural variation. The country which are having a lot of population, the second largest populated country in the world. In India, some states are as big as some European countries. For example, in Uttar Pradesh is bigger than the Russia. Maharashtra is about as big as Germany. Okay, many of these states are internally very diverse. So there is thus a need for power sharing within these states. Federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state governments. This is the rationale for decentralization of power. Thus it resulted a third tier of government called local government. So the country like India, which has very vast area, so there is a need to solve the problem at local level, and the country which are having more than 6 lakhs village in India. भारत में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं. भारत को गाँवों का देश कहा जाता है. ठीक है, और भारत जो है गाँवों में ही बसता है, जिसकी मोर देन 70% पॉपुलेशन गाँव में रह रही है. इसके लिए ज़रूरत है कि लोकल गवर्नमेंट ज़रूर होना चाहिए. क्यों? बिकॉज एट द लोकल लेवल पीपल नोज अबाउट देयर लोकल प्रॉब्लम्स, पीपल नोज अबाउट द ग्राउंड रियलिटी, पीपल नो अबाउट दैट वेयर शुड द गवर्नमेंट मनी टू बी स्पेंड. सो फ्रॉम सिटिंग एट दिल्ली or from sitting at the capital of your state, the state or central government cannot decide or cannot understand what is the real need of local people who are living in the village area. So because of all these things, there is a great need of decentralization of power in India. Okay, the basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. People have better knowledge of problems in their localities. They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. Okay, this helps to inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government. So local issues, local problems, local need of the people, it should be satisfied by the local people only, who knows the actual situation of their village area. That's why भारत में लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई और भारत में
पंचायती राज का जन्म हुआ। ओके, सो इन इंडिया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पंचायत सिस्टम आर हेड। सबसे निचले लेवल पर या ग्रास रूट लेवल पर ग्राम पंचायतें होती हैं, उसके ऊपर जनपद पंचायत होती है, और सबसे ऊपर जिला पंचायत, जिसको जिला परिषद भी कहा जाता है, वो होती है। ओके, सो ग्राम पंचायत हम जानते हैं, क्लास 6 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो बुक थी उसमें भी दिया हुआ है कि जो ग्राम पंचायत में सरपंच हेड होता है एंड पंच, different पंच are the members of the panchayat. These पंच are elected by their ward members or the people of their area. Okay. Similarly, janpad panchayat is a group of sub gram panchayat. The member of the janpad panchayat is elected by the people who are living इन दैट जनपद, मीन्स कुछ गांवों के समूह को मिलाकर के जनपद पंचायत बनती है। तो उस गांव के लोग, उन सारे गांवों के लोग मिलकर के जनपद पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। और सबसे ऊपर होती है जिला पंचायत, जो बहुत सारी जनपद पंचायत को मिलाकर के बनाई जाती है। ओके, और जिला पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो इन सारी जनपदों में रहने वाले लोग मिलकर के करते हैं। ठीक है, तो इन सब का चुनाव जो है जनता ही करती है मेनली। ठीक है, 1992 के बाद हमारे यहाँ पर ये पंचायती राज सिस्टम या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिंस देन there have been several attempts to decentralize power to the level of village and towns. Panchayats in villages and municipalities in urban area were set up in all the states. ठीक है, अब बात आई है म्यूनसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हो गया गाँव में, गाँव के लिए ग्राम पंचायत। ठीक है, फिर जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये पंचायत लेवल के काम हो गए। लेकिन शहरों के लिए, जहाँ पर अर्बन एरिया है, वहाँ के लिए जो लोकल गवर्नमेंट वर्क करती है उसको नगर निगम या म्यूनसिपल काउंसिल कहा जाता है, म्यूनसिपैलिटीज़ कहा जाता है। जैसे जबलपुर में नगर निगम है, आप जानते हैं। ठीक है, तो इसका हेड कौन होता है? मेयर होता है। और नगर पालिका में जो छोटे शहर होते हैं, जैसे सिवनी है, बालाघाट है, नरसिंहपुर है, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर नगर पालिका होती है। ठीक है, और नगर पालिका का हेड नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। और उससे लोकल लेवल पे, लोअर लेवल पे, जहाँ पर जनसंख्या जिला से भी कम होती है, वहाँ पर नगर पंचायत होती है। ठीक है ना, उसका अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है। तो गांव के लेवल पर 3 लेवल हैं पंचायत के, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। और नगर पालिका के स्तर पर अर्बन एरिया के लिए भी 3 लेवल होते हैं, नगर निगम, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पालिका, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और तीसरा है नगर पंचायत। ठीक है, तो ये 3 शहरों के लिए लोकल गवर्नमेंट बनाई गई हैं और 3 गांवों की लोकल गवर्नमेंट बनाई गई हैं। अब 1992 के पहले क्या स्थिति थी कि ऑल दीज लोकल गवर्नमेंट्स वेयर नॉट गिवन सो मच पावर। ओके, स्टेट गवर्नमेंट्स वेयर हैविंग ऑल द पावर्स एंड दे वेयर मैनेजिंग दी ऑल दीज लोकल गवर्नमेंट्स according to their wishes. So we can say that there were no regular elections were not also conducting for these local governments. जैसे हर 5 साल में होना चाहिए वैसे नहीं होते थे। सो 1992 में एक बहुत मेजर स्टेप लिया गया डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बदलाव लाए गए ताकि इन लोकल गवर्नमेंट को मजबूत किया जा सके। ये लिखा हुआ है
A major step towards decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. थर्ड टीयर मीन्स लोकल गवर्नमेंट। पहले दो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के बारे में, जिसके दो पार्ट हैं, पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो 1992 के बाद क्या चेंजेस लाए गए? नाउ it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. Okay, it has made compulsory to hold regular elections for these local governments. इसके पहले नहीं होते थे, स्टेट गवर्नमेंट अपनी इच्छा के अनुसार इनके चुनाव कराती थी, लेकिन अब कंपलसरी कर दिया गया कि हर एक रेगुलर इलेक्शन इनके रेगुलर इंटरवल पे होंगे। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज and in the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. ST, SC और OBC को रिजर्वेशन दिया गया चुनावों में, जो पहले नहीं था। At least 1/3 of all positions are reserved for women. Means 33% seats would be reserved for the women only. Means 33% सीट ऐसी होंगी जहाँ से केवल वुमेन चुनाव लड़ेंगी और वही जीतेंगी, कोई भी मेल पर्सन वहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये वुमेन को भी 33% रिजर्वेशन दिया गया, जो कि पहले 1992 के नहीं था। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। नेशनल लेवल पे तो एक इलेक्शन कमीशन होता ही है जो पूरे कंट्री के लोकसभा चुनाव वगैरह कराता है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन भी 1992 में फॉर्म किया गया, जो इन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा, ताकि रेगुलर इलेक्शंस इन लोकल गवर्नमेंट के हो सकें। फिफ्थ पॉइंट, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. अब state government must have to share some powers and the tax collection sources with the local government also, so that they can be financially empowered. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि वो अपनी कुछ पावर और कुछ टैक्स लोकल गवर्नमेंट को दें, ताकि वो अपना खर्च खुद चला सकें और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। तो ये पांचों चेंजेस लाए गए 1992 के बाद। ये इसके पहले 1992 के पहले बहुत कमज़ोर स्थिति लोकल गवर्नमेंट की थी बट नाउ बिकॉज ऑफ द रेगुलर इलेक्शंस, रिजर्वेशन गिवन टू ST, SC, OBC as well as the women also, is with the formation of state election commission with the taxation power. After 1992 the local governments have become more self-reliant and more independent in their working. ये क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो आप एक्सरसाइज पार्ट में होमवर्क साइड में ही करेंगे। ओके, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। पंचायती राज सिस्टम जो सब जानते हैं, मैंने डिस्कस किया। Each village or a group of village in some states has a gram panchayat. We have already discussed about this. This is a council consisting of several ward members, often called पंच, जो मैंने बताया था आपको कि पंच का इलेक्शन वार्ड मेंबर्स करते हैं अपने अपने गाँव में, एंड अ प्रेसिडेंट वाज कॉल्ड सरपंच, और इन्हीं के बीच में से एक सरपंच का भी चुनाव होता है, जो डायरेक्टली चुना जाता है गांव की जनता के द्वारा। ये लिखा हुआ है, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ऑल एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। सो द पंच इलेक्टेड फ्रॉम द ईच वार्ड एंड द सरपंच हु इज ऑल्सो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, दे मेक्स द ग्राम पंचायत एंड दे टेक्स ऑल द डिसीजन फॉर द विलेज वेलफेयर। द पंचायत वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के अंडर में ग्राम पंचायत काम करती है। ग्राम सभा का मेंबर कौन होता है? ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। सो ग्राम सभा हैड टू मीट ट्वाइस और थ्राइस in a year
to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat। ग्राम सभा की अप्रूवल ज़रूरी होती है ग्राम पंचायतों के लिए, ताकि वो अपना बजट, अपनी फंडिंग अप्रूव करा सकें। इसका मतलब ये है कि ग्राम पंचायत के ऊपर भी एक रेगुलेटरी बॉडी ग्राम सभा अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशन ने की है। मतलब ग्राम पंचायत अपने मन से कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा इसके ऊपर होती है और ग्राम सभा के मेंबर सारे वोटर्स होते हैं गांव के। सोचिए हज़ारों हज़ारों वोटर भी होते हैं गांव में, तो वो सारे वोटर्स जो हैं एज अ ग्राम सभा के मेंबर ग्राम पंचायत के वर्क को सुपरवाइज करते हैं। ओके, द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। A few gram panchayats are grouped together to form what is called a पंचायत समिति, a block और मंडल, जिसको मैंने बताया था अभी जनपद पंचायत, जिसको पंचायत समिति, ब्लॉक पंचायत या मंडल पंचायत भी कहते हैं। ये अलग अलग नाम है, ठीक है। तो ये कैसे बनती है? a few ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर एंड मेक a मंडल पंचायत और ब्लॉक पंचायत। The members of this representative body are elected by all the panchayat members in that area. I have earlier told you. All the panchayat samitis or mandals in a district together constitute the जिला परिषद। जो मैंने बताया था जिला पंचायत के बारे में, तो सारी मंडल पंचायत, जिसको जनपद पंचायत भी कहते हैं, ये मिल करके जिला पंचायत या जिला परिषद बनाती है। Most members of the जिला परिषद are the elected by the people. Members of the Lok Sabha and MLAs of the district and some other officials are also the members of the जिला परिषद। उस जिले का सांसद, उस जिले के सारे विधायक और अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी जिला परिषद के मेंबर होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। तो जिला परिषद या जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है। मतलब उसका चुनाव कौन करते हैं? जिला पंचायत के सदस्य मिलकर के करते हैं। और जिला पंचायत के सदस्य कौन चुनता है? जनता चुनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, जिसकी अभी ये बात की अपन लोगों ने यहाँ पर कि जिला परिषद चेयरमैन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, मीन्स the head of the Jila Parishad is elected by the members of Jila Parishad. It means that it is indirectly elected by the people. Indirectly क्यों? क्योंकि जिला परिषद के मेंबर्स को डायरेक्टली चुना है किसने? जनता ने। और यही मेंबर्स किसको चुन रहे हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष को चुन रहे हैं। इसलिए इनडायरेक्टली जनता इनको किसको? अध्यक्ष को चुन रही है। ठीक है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल, जो मैंने डिस्कस किया। म्यूनिसपैलिटीज़ आर सेट अप इन बिग टाउन्स। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। बोथ म्यूनिसपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, जो मैंने बताया आपको। बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और छोटे शहरों में क्या होते हैं अपने यहाँ पर? म्यूनिसिपल काउंसिल्स होती हैं। ठीक है। सो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी इन अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सच एज ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। ठीक है। सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जबलपुर, भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों में क्या होती है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, जिसका हेड मेयर होता है, जिसको जनता चुनती है डायरेक्टली। ठीक है। और छोटे शहरों में क्या होती है? म्यूनिसिपल काउंसिल होती है। ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था, उसको आप रेक्टिफाई करेंगे। बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और छोटे शहरों में क्या होती है? नगर पालिका। ठीक है, म्यूनिसिपल कमेटीज। अब आगे इन्होंने दिया हुआ है, दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सोचिए आप, ये जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है भारत में, ऐसा सिस्टम कहीं भी नहीं है पूरी दुनिया में। देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन दी पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज़ एक्सेट्रा ऑल ओवर द कंट्री। आप सोचिए 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं
जिनको चुनाव किया गया है पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ के जो मेंबर हैं, वो कितने मेंबर टोटल 36 लाख, ठीक है, पूरे देश भर में सारे सरपंच, पंच और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या कितनी है 36 लाख। दिस नंबर इज़ बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कई देशों की जनसंख्या से ज़्यादा तो हमारे यहाँ केवल वार्ड मेंबर है, सोचिए आप। Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. It has also increased women's representation and voice in our democracy. At the same time, there are many difficulties. Okay, अब आप देखिए, हमने जो अभी बात की कि इलेक्शन कमीशन बना दिया गया है, वुमेन को रिजर्वेशन दे दिया गया है, ST SC OBC को रिजर्वेशन दे दिया गया है, बट देयर आर सम डिफ़िकल्टीज आर आल्सो एग्जिस्टिंग टू रन दीज लोकल गवर्नमेंट्स। क्वेश्चन आप लिखेंगे 3 मार्क का आता है। क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट आर दी डिफ़िकल्टीज आर देयर, व्हाट आर दी डिफ़िकल्टीज आर देयर टू रन दी लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम जाती है लोकल गवर्नमेंट को चलाने में। पहला है, वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड इंथुजियास्टिकली, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। जो अभी मैंने बात बताई थी आपको कि ग्राम सभा की मीटिंग साल में 2 से 3 बार होनी चाहिए, लेकिन ये मीटिंग नहीं होती है क्योंकि सारे वोटर्स जो हज़ारों की संख्या में कई गांव में होते हैं वो बैठ करके मीटिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए ग्राम पंचायत कई बार अपने मामलों में इंडिपेंडेंट होकर काम करती है, जो केवल अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए होता है, ना कि पब्लिक वेलफेयर के लिए। ठीक है, most state governments have not transferred significant powers to the local government। ये भी बात सही है, कई स्टेट गवर्नमेंट ने जितने पावर लोकल गवर्नमेंट को देने चाहिए वो भी नहीं दिए हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम है। नॉर दे हैव गिवन द एडुकेट रिसोर्सेज, प्लस उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स को कलेक्ट करने की पावर भी नहीं दी है। क्लियर है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण लोकल गवर्नमेंट को रन करने प्रॉब्लम जा रही है, क्योंकि उनके पास टैक्स कलेक्शन के बहुत कम सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो दीज आर दी मेन प्रॉब्लम्स टू रन दी लोकल गवर्नमेंट्स। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसलिए एक आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर अभी भी स्टेब्लिश नहीं हुई है, इसमें अभी भी और अमेंडमेंट की सुधार की ज़रूरत है। अब देखिए, एक एग्जांपल यहाँ पर ब्राज़ील का दिया हुआ है। ब्राज़ील में एक सिटी है पोर्टो एलेग्रे, वहाँ पर कई सारे लोगों ने, वहाँ पर सारी जो पॉपुलेशन थी सिटी की, पोर्टो एलेग्रे की, वो लोग मिल कर के डायरेक्टली डिसीजंस लेते हैं, मीटिंग करते हैं डायरेक्टली फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटी। इसको आप पढ़ेंगे बुक से, तो ये लेसन अपना एंड होता है और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप, 3rd, 4th, 5th ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन आप क्लास वर्क साइड में करेंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर फ्रॉम दी नेक्स्ट डे। थैंक यू।